Link same. So I believe all are back. I hope you guys can see my screen. So now could you quickly go to your browser and type this IP address, this 52.152.217.15, and see if you can get any website. I hope you got the IP address. If not, I'll quickly type it here. It's 52.152.217.15. Just copy this IP address and paste it in your browser, or simply just type this and hit enter. Type this IP address in your browser and hit enter, and you should see a website. Tech Factory. Yes. Yeah. You can see it, right? So that's my Yep. website. That's the website for this Tsoft Info Solution. Tsoft. Alright. But that is not the actual website which I published. This is for practice purpose. इसलिए उसमें थोड़ा बहुत glitch हो गया, and then you are able to use it using IP address. Otherwise कोई IP से रखता नहीं. Most of the time what I'll do, इसको मैं नाम के साथ map करूंगा. That we will learn when we start our DNS topic. कि किसी भी IP को कैसे नाम से map करना है. Because now if I tell you guys कि ये मेरी website है यार, इसको थोड़ा सा promote कर दो, और आप, or if you guys have any questions, try accessing this website and post your comment over there. Will you be able to remember this IP? कितनी देर याद रखोगे आप, right? It's better if I tell you, okay, this is my company's name, Tsoft Info Solution. My website is tsoftinfosolution.com, which is easier for you. I mean, obviously it's human nature to remember names easily, याद रख सकते हैं compared to numbers, right? So वो हम पढ़ेंगे जब DNS का टॉपिक करेंगे कि ये IP के अगेंस्ट नाम कैसे असाइन करना है. But what I was explaining here, that this is a server and this is how you can host your website. So here this server has a feature called IIS. Under IIS, I can come here and I can host my website. This is where my website is hosted. ये जो आप सारा पेज देख रहे हो, ये सब देख रहे हो ना, here it is. And if I go and show you guys कि ये मेरा यहाँ पर डेटा सारा है कहाँ पर. So let this get open and I'll explain it to you. Here it is. यहाँ पर जो है ना, ये मेरी पूरी वेबसाइट यहाँ पर होस्टेड है. इसमें कुछ इंडेक्स 2 पेजेस है, कुछ इमेजेस है. कैन यू सी? जो भी आपको उस वेबसाइट पे दिख रहा है ना, everything is there on that website. It is here. You see multiple logos and जो भी पिक्चर्स वगैरह जो कुछ दिख रहा है वहां पर आपको सेटिंग्स का आइकन, ठीक है. माय टीम्स का जो टीम्स पे जो पिक्चर दिख रहे हैं आपको, इफ यू नेविगेट माय वेबसाइट एंड गो टू दिस टीम वाले इस पे जाओ आप, तो वहां पर यू विल सी फ्यू नेम्स. दिस इज डमी, कंप्लीटली डमी, सब कुछ डमी है ये, ठीक है. So I hope you can see this.
So this is where my data is saved. यहाँ पर पूरा का पूरा data saved है और यहाँ से वो fetch कर रहा है, मतलब यहाँ पर data रख के ये, because this is a server operating system, यहाँ से मुझको वो facility मिल रही है कि मैं ये सारी चीजों को रख के इसको represent कर पाऊँ as a website. That is what I get from a server. And website is just one of the features. इसमें plenty of features है which we will discuss जब हम अपना ये शुरू करेंगे, कोर्स शुरू करेंगे, तो जितने भी हमारे काम के फीचर्स है we will be discussing them. But I hope it is clear as of now कि एक client operating system and server operating system में क्या difference है. Is it clear or anyone has a doubt? Still, if anyone has doubt, let me know. All good, sir. दिखने में ऐसा ही दिखता है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है. दिस इज हाउ मेरा विंडोज 10 11 भी ऐसा ही दिखता है. एंड दिस इज आई थिंक ये होगा शायद 19 होगा, 2022 है ये विंडोज सर्वर 2022. ये आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से उसमें है, कौन से इसमें. ये पढ़ते हुए हम वैसे ही हम लोगों को याद आ जाएगा जब हम अज़ूर स्टार्ट करेंगे ना, तो इनको हम ऑलमोस्ट डेली देखने वाले हैं. यू विल कम टू नो, बट नाउ यू शुड एटलीस्ट हैव एन आइडिया कि क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और एक server operating system क्या है. So I'll minimize this. This is a server manager from where you can install roles. I'll quickly show you कौन कौन से roles होते हैं, वो roles करते क्या है, that we are not discussing now. So this is fetching data from background. Once that is done, it should give us that window. Meanwhile, okay, let's come back to our topic. वो हो जाएगा 1 minute में. So I'll show it to you guys. So now you understood कि what is a server, right? So to host this server, I will require one server class hardware. अब server class hardware जो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर, okay, here I'm not talking about virtualization, here I'm not talking about cloud. Don't get confused. ठीक है, इसको हम धीरे धीरे सॉर्ट करेंगे. I'm not talking about today's situation exactly. आज की सिचुएशन नहीं डिस्कस कर रहा हूँ मैं, so don't get confused. So how it started उसकी बात कर रहा हूँ मैं. So this is a server class hardware. अब इस तरह के मुझको 50 जो है सर्वर लगेंगे सिर्फ मेरी एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए. 50 ऐसे हार्डवेयर लगेंगे, 50 ऑपरेटिंग सिस्टम लगेंगे. एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंसिंग कॉस्ट कम से कम 15,000 होगा सर्वर का. हमारे क्लाइंट का 7-8,000 की रेंज में होता है, सर्वर का 15-16,000 होगा. एंड दिस डिवाइस सर्वर क्लास हार्डवेयर जिसके ऊपर वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, दिस इटसेल्फ कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 3 lakhs. ये एक एवरेज है, इसमें 2 लाख वाला भी आता है, इसमें 7 लाख वाला भी आता है, ठीक है. सो 3 lakhs एक एवरेज है. सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि एक स्विगी को होस्ट करने के लिए यहाँ पर कितना पैसा उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है. ऑन एन एवरेज भी अगर हम देखते हैं, एक सर्वर पे अगर हम 3 लाख रुपए पे स्पेंड कर रहे हैं इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड लाइसेंसिंग, तो यहाँ पर जस्ट इमेजिन कितना पैसा हम लोग स्पेंड कर रहे हैं. यहाँ पर स्विगी कितना पैसा स्पेंड कर रहा है. And now to host these servers, you will require a server rack. ये सारे सर्वर्स लगाने के लिए जो है ना, एक सर्वर रैक होता है. वो सर्वर रैक अपने में लाखों रुपए का आता है. यू मस्ट हैव सीन इट, कहीं ना कहीं आपके ऑफिस के किसी कोने में दिखता है जिनका सर्वर रूम होता है ना. दिस इज अ रैक. इन सब सर्वर्स को कनेक्टिविटी, बिकॉज इफ आई एम यूजिंग 50 सर्वर्स, मैं सारे के सारे अलग नहीं चाहता, उनमें कोई कनेक्टिविटी होगी तभी मेरे कुछ काम के हैं. सो टू डू दैट आई विल रिक्वायर नेटवर्किंग. तो ये नेटवर्किंग का खर्चा. एंड दी सर्वर्स ये बहुत ज्यादा जल्दी गर्म होते हैं, तो इनको होस्ट करने के लिए मुझको एक रूम चाहिए, एक टेम्परेचर उसमें मेंटेन करना पड़ता है, तो मल्टीपल एसीज. ये सारा खर्चा जो है इन्वॉल्व होता है एक छोटा सा एप्लीकेशन ये करने में, एक छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है. एसी का खर्चा होगा, देन यहाँ पर स्पेस का खर्चा होगा, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड का खर्चा होगा, कुत्तों का खर्चा होगा उसकी सिक्योरिटी के लिए, एंड इलेक्ट्रिसिटी, पावर. और एक पावर सप्लायर पे मैं डिपेंडेंसी नहीं रख सकता हूँ. लेट्स से यहाँ पर आई ओनली हैव एमएससीबी का पावर लाइन, एमएससीबी डिस्कनेक्ट हो गया, देन व्हाट. तो यहाँ पर बैकअप में मुझको रिलायंस का एक पावर रखना पड़ेगा. व्हेन इट कम्स टू आईएसपी, आई हैव वन ओनली फ्रॉम एयरटेल, बट एयरटेल डाउन हो गया फॉर सम रीजन, देन व्हाट, मेरा पूरा का पूरा एप्लीकेशन डाउन हो जाएगा. नाउ अंडरस्टैंड कि ये छोटा सा 10 सेकंड भी किसी एप्लीकेशन के डाउन होने में करोड़ों का नुकसान उनका हो जाता है. स्विगी का भी करोड़ों का नुकसान होता है अगर लोग उसको इतना यूज करते हैं. इफ फॉरगेट स्विगी, लेट्स टॉक अबाउट फ्लिपकार्ट. बिग बिलियन डे में दे अरबों का वो लोग बिजनेस करते हैं, दे डू दैट.
और उसमें अगर 10 मिनट के लिए कोई पावर सप्लाई डाउन हो जाए तो कितना नुकसान होगा। सो दे कैन नॉट अफोर्ड इट, हेंस दे आर यूजिंग दीज 50 सर्वर्स, ताकि एक दो डाउन भी हो जाए तो मेरी सर्विसेज चलती रहे। हेंस दे आर यूजिंग multiple networks, hence they are using multiple ISPs, hence they are using multiple power suppliers। ये सब करके एक जो है ये एक किसी तरह का एप्लीकेशन ये लोग चलाते हैं। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सर्वर और इतने सारे सर्वर्स क्यों लगते हैं हमको। इसके अंदर जो टेक्निकल चीजें हैं, हाउ टू होस्ट वगैरह, वो सब हम धीरे धीरे करेंगे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इंफ्रास्ट्रक्चर। इज इट क्लियर टिल नाउ? Yes. So what we were discussing till service desk and application support, बस हम यहाँ का सपोर्ट डिस्कस कर रहे थे। विच सपोर्ट वी वर जस्ट डिस्कसिंग, एकदम ओवरऑल सपोर्ट डिस्कस कर रहे थे। वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट सर्वर्स। जो सर्विसेज वाला बंदा है, जो एप्लीकेशन सपोर्ट है, दे विल नॉट इवन लॉग इन टू सर्वर्स। उनको पता भी नहीं होता कि सर्वर्स क्या है और क्या है, कहाँ पर जाना होता है। बट in infrastructure, when we talk about infrastructure, we will not be dealing with those issues। वो सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए था। now leave them behind, just leave them and proceed। so we will be discussing each and everything about servers। maximum time, majority of the time we will be discussing servers। now next time when I say a VM, a virtual machine or a physical machine or an instance or anything, you have to understand that I am talking about a server। हाँ, अभी हमने सिर्फ विंडोज के सर्वर देखे, इसमें लिनक्स के भी आते हैं, दैट विल सी, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके देखेंगे। आई डोंट वांट टू मच ऑफ डाउनलोडिंग एक बार में ही, ऐसा नहीं हो कि समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ, दैट शुड नॉट हैपन। ठीक है। सो दीज यूजर्स व्हेन दे ट्राई टू कनेक्ट टू दिस वेबसाइट, बैकएंड में जो है ना, ये इसी किसी सर्वर से ही कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर नॉट नेसेसरी कि एक यूजर एक सर्वर से, एक सर्वर अपने आप में थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को सर्विस दे सकता है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट डू आई मीन बाय सर्वर which provide services and a client which takes services। ये जो बैठे हैं ना, अल्टीमेटली अब कोई ना कोई अपना लैपटॉप ही यूज कर रहा है, बीट एप्पल, बीट विंडोज, या फिर कोई अपना मोबाइल यूज कर रहा है। बट दीज आर पीपल हु आर यूजिंग सर्विसेज, और ये सर्वर्स है जो प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज। इज इट क्लियर टिल हियर? तो इसके बीच में जो यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह बेसिक चीजें हैं, वो सपोर्ट एप्लीकेशन सपोर्ट और सर्विस डेस्क सपोर्ट तक आता है। बट व्हाट इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद दिस सर्वर, देन व्हाट? ठीक है, यूजर नेम नहीं चल रहा है इस सर्वर पे, किसी एक पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर यूजर का एक यूजर नेम नहीं चल रहा है। लेट्स से स्विगी का ही है, स्विगी के कस्टमर केयर को कोई कांटेक्ट करता है दैट आई हैव दिस यूजर आईडी बट आई एम अनेबल टू लॉग इन। ही मे चेक कि सर्वर पे कोई रिवोक हो गया होगा, एक्सेस कुछ हो गया होगा, ज्यादा से ज्यादा उतनी चीज चेक करेगा एक सर्विस डेस्क वाला बंदा। उसको भी सर्विस डेस्क एम्प्लॉय विल नॉट हैव एक्सेस टू सर्वर। यहाँ से उसको डेलीगेट करके एक आधा टूल दिया होगा, वी विल सी दैट हाउ दैट टूल लुक्स, जिसके थ्रू आप लोग विदाउट गोइंग टू सर्वर हाउ कैन यू वर्क। बहुत लिमिटेड एक्सेस मिलता है सर्विस डेस्क को भी, एंड एप्लीकेशन सपोर्ट को भी बहुत लिमिटेड एक्सेस मिलता है। ठीक है। बट व्हाट इफ समथिंग गोज रॉन्ग? आप लोग, पीपल हु आर वर्किंग विद सर्विस डेस्क एंड हु आर वर्किंग विद एप्लीकेशन सपोर्ट, दे मस्ट हैव हर्ड दिस कि भाई एक 7 रेज हुआ है, कोई माइग्रेशन चल रहा है, कोई सर्वर डाउन है, दे आर वर्किंग ऑन सर्वर। उस टाइम पे आप क्या करते हो? यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू सिंपली टेल देम कि दिस इज व्हाट द केस इज एंड वी हैव टू वेट। सॉरी, सो दिस इज व्हाट यू कैन से। बट इस पे जो कुछ हो रहा है, इस पे भी तो कोई काम कर रहा है, राइट? ये जो सर्वर से इसमें कोई इश्यू होता है, इस पे भी तो कोई काम कर रहा है। सो दैट इज व्हाट वी विल बी लर्निंग। तो अब हम इसके थोड़ा सा और आगे जाते हैं एंड विल सी कि सर्वर होस्टेड कैसे है। आज उतना देखेंगे, एंड इफ यू गाइस थिंक वी कैन स्टॉप फॉर टुडे। इफ यू वांट थोड़ा सा इसमें और ऐड करता हूं, एंड देन वी कैन स्टॉप, व्हाटएवर यू गाइस वांट। आई डू नॉट वांट कि बहुत ज्यादा डाउनलोडिंग हो जाए और समझ में ही नहीं आए। आई डोंट वांट दैट टू हैपन। Is it clear till here? Do you guys want me to go ahead and explain कि ये सर्वर किस तरह से ये होता है, इंस्टॉल वगैरह होता है? Not technical, just talking about the overview. Installation वगैरह I am not even starting as of now. Do you want me to continue with the overview, or I could take it Yes, tomorrow sir. as well? Yes, yes, please proceed. Okay, so I think majority people wants to proceed. Okay, so these are the servers I'm talking about. हम लोगों ने बात की कि सर्वर्स कैसे इंस्टॉल होता है। सर्वर क्लास हार्डवेयर पे इंस्टॉल होता है। These are the server class hardware। उसको रैक में लगाया। This is how you fit a server in a rack। ये रैक है, इस तरह का रैक दिखता है। ये सब होने के बाद, नेटवर्क कनेक्टिविटी होने के बाद, इसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हो। सो हाउ इट यूज्ड टू बी इनिशियली, एक जो है सर्वर रैक है, उसके ऊपर मल्टीपल सर्वर्स लगे हुए हैं। दिस इज सर्वर 1। रैक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे भी हो सकता है, ठीक है? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ।
आप लोगों को ऐसा बता रहा हूँ. So this is, and whenever I say server, what is a server? Server is an operating system. But कई बार हम इसको server बोल देते हैं, but ये server class hardware है. यहाँ पर when I'm mentioning this, this is a hardware. So I am not writing it server class hardware. I'm writing it server one. But when I discuss server, server एक operating system होता है, nothing else. So this is server A, server B, and server C. And I need all these three servers to run one application. In fact, इससे ज़्यादा लगते हैं, but as of now, I am considering this. How it started initially कैसे होता था, that I am explaining. Later on हम आएंगे धीरे-धीरे towards cloud. बाद में हम legacy वाले को भूल जाएंगे, इसको हमको याद भी नहीं रखना, but you should understand, you should know कि कैसे होता था. पहले ये लाख रुपए का हार्डवेयर मैं खरीद के लेकर आता था, इसके बीच में मैं किसी तरह से कनेक्टिविटी करता था. So now these are connected. Now what will I do? Lakhs of rupees I spent on this one. Now I will get one operating system. Operating system में इसके ऊपर इंस्टॉल करता था. Now again, which operating system is this? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? We are talking about a server class operating system, a server operating system. इतने बड़े हार्डवेयर को लाके लाखों रुपए का उस पे हम Windows 10 नहीं चलाने वाले. I hope you understand that, right? So here I will install my operating system. When I say server, इस सर्वर के अंदर क्या क्या होगा? इस सर्वर के अंदर आपके हार्ड डिस्क होंगे. I'm writing just HDD. इसके अंदर आपका रैम होगा, इसके अंदर आपका मदरबोर्ड होगा, ये सब कुछ होगा इसके ऊपर. ठीक है, ऑब्वियसली ये सब होना चाहिए, तभी एक सर्वर क्लास हार्डवेयर या कोई भी हार्डवेयर चलेगा. आई मीन जो आपके लैपटॉप में होता है ना, सेम चीज है यहाँ पर. इफ यू चेक योर लैपटॉप और सीपीयू, किसी ने खोल के देखा होगा, उसमें जो हार्ड डिस्क होता है, उसमें जो रैम होता है, सेम चीज है यहाँ पर होगी, बट काफी स्ट्रॉन्ग वे में होगी, काफी उससे बेटर वे में होगी. ठीक है, आपके लैपटॉप में मैक्सिमम रैम क्या देखा है किसी ने? 8 GB, 16 GB. यहाँ पर टीबीज में भी रैम दिखती है आपको. 32 GB, 64 GB, 128 GB, 512 GB का रैम दिख सकता है आपको इसमें. 512 GB तो मुश्किल से हम लोग हार्ड डिस्क यूज करते हैं कई बार. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर फॉर एवरीवन, दैट व्हाट इज अ हार्ड डिस्क, व्हाट इज अ रैम, मदरबोर्ड. एनीवन हु डजंट अंडरस्टैंड दिस, लेट मी नो. उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे, बिकॉज एज ऑफ नाउ वी डिस्कसिंग बेसिक्स, तो मैं बेसिक्स पे ही हूँ. आई डू नॉट माइंड explaining this, because आगे जाके जब हम Azure पे करेंगे, तब we will have to deal with RAM, we will have to deal with hard disk. तो anyone who doesn't understand कि क्या hard disk क्या है, RAM क्या है, motherboard क्या है, anyone? If you do not want to say here, you can privately text in this one also. Anyone Could who you wants me to explain it, explain? please? Sorry. Could you explain it, Sure. please? So RAM and hard disk, these are components of a virtual machine. Oh sorry, of a physical machine. As of now we are talking about a physical machine. Virtual में भी आएगा, but I do not want to confuse you guys, so as of now we are just discussing this. It could be your laptop, it could be your PC जो घर पे यूज करते हैं, और it could be your server जो यहाँ पर हम देख रहे हैं. इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स किसी एक मशीन के, ठीक है, एक सीपीयू के हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो है, इसको हम डिस्कस करते हैं. This is the best image I can see. So we have a RAM. RAM क्या होता है? आई एम श्योर इतना सबको बेसिक पता ही होगा, आपके मोबाइल में भी रैम होता है. रैम इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? इस पे से आपका पूरा डेटा फ्लो करता है, कि कहीं से ब्राउजर से लाके आपके डिस्प्ले पे बताने तक का जो डेटा है वो इस पे फ्लो करता है. इस पे स्टोर कुछ नहीं होता है, कंटिन्यूस ट्रैफिक इस पे चलते रहते हैं. तो जितना ज्यादा रैम उतना ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलता है. ठीक है, देन वी हैव मदरबोर्ड. मदरबोर्ड पे जो है, ये मदरबोर्ड और मेन बोर्ड, व्हाटएवर यू कॉल इट, इस पे सारे सर्किट सब कुछ जो है इसके ऊपर लगा हुआ होता है, ग्राफिक कार्ड वगैरह सब कुछ इसके ऊपर लगा हुआ होता है. इसी के थ्रू मेन आपका सीपीयू जो है चलता है, बीट हार्ड सर्वर या आपका क्लाइंट मशीन. देन वी हैव हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क इज समथिंग वेयर आई एम सेविंग माय डेटा. रैम पे मैं अपना डेटा सेव नहीं कर रहा हूँ, इट इज जस्ट हेल्पिंग मी टू गैदर माय डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वेबसाइट से मेरे डिस्प्ले पे बताने तक, मेरे यहाँ से भेजने तक. आई एम अपलोडिंग सम पिक्चर टू फेसबुक, अल्टीमेटली फेसबुक के सर्वर पे जाके अपलोड होने वाला है, मेरे मोबाइल से जा रहा है. तो उसके बीच का जो ये है कि फेसबुक के वेबसाइट तक पहुंचाने का काम, वो मेरा रैम कर रहा है. ठीक है, दिस इज व्हाट अ रैम इज. हार्ड डिस्क क्या है? समथिंग विच आई एम सेविंग हियर ऑन लोकली. ये मेरे इसमें लगा है, लोकली मेरे सीपीयू में लगा है. हियर आई एम सेविंग माय पिक्चर्स, हियर आई एम सेविंग सम वीडियोस. जो कुछ मैं सेव कर रहा हूँ वो जाते हैं हार्डवेयर में. और बेसिक साउंड कार्ड वगैरह जो है, अगेन ये थोड़ा सा मदरबोर्ड पे भी साउंड कार्ड होता है, बट आपको
थोड़ा इनहेंस्ड वे में चाहिए तो एक अलग से साउंड कार्ड आता है, VGA कार्ड आता है, ग्राफिक कार्ड्स आता है. सो दीज आर नथिंग बट कंपोनेंट्स ऑफ योर CPU, जिसके थ्रू ये पूरा कॉम्बिनेशन के बाद जो है ये आपका चलता है. इसमें पुराने अगर आपको याद हो किसी को तो इसमें फ्लॉपी ड्राइव भी चलते थे. फ्लॉपी आता था तो एक फ्लॉपी ड्राइव चलता था. देन वी हैव अ फैन. व्हाई डू वी हैव फैन? ताकि उस मदरबोर्ड को वो ठंडा करता रहे, चल चल के वो गर्म होता है. सो फॉर कूलिंग पर्पस वी हैव फैंस. एंड देन वी हैव CPU. सबको पता है CPU और प्रोसेसर वगैरह क्या होता है. प्रोसेसर वो एकदम मेन कंपोनेंट है जिसके थ्रू ये सब पूरा चलता है, मदरबोर्ड को जो पूरा कंट्रोल करता है. ठीक है. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ मशीन. तो ये सब में होते हैं, इन सब में होंगे. इसके ऊपर हमारा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम. इधर आई कुड हैव OS 2K16, यहाँ पर मैं रख सकता हूँ सर्वर 2K19, और यहाँ पर भी मे बी आई एम कीपिंग सर्वर 2K19. ठीक है. इस तरह से आई कुड हैव दिस सर्वर. सो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द लेगेसी वे. यहाँ पर क्या होता था, एक एप्लीकेशन होस्ट करने के लिए मुझको अगर 3 सर्वर्स भी चाहिए, so I am spending my money on this hardware, on this hardware, on this hardware, and then I'm spending my money on this license for this operating system, this operating system, and this operating system. But this all is required to host one application. मुझको business करना है online, application host करनी है, मुझको Amazon जैसा कुछ करना है, YouTube जैसा कुछ करना है, तो I will require everything. So this is what an infrastructure is. Example में हम काफी छोटे ले रहे हैं, यहाँ पर 3 लिया, but एक actual environment जो है ना, स्विगी जैसा एक, ये मैं बता रहा था कि सिर्फ स्विगी का फ्रंट पेज लोड करने के लिए आपको फ्रंट पेज होस्ट करने के लिए 50 सर्वर्स लगेंगे. इसमें देन बैकएंड भी होगा. अभी मैं बैकएंड को नहीं ला रहा हूँ पिक्चर में. आई विल एक्सप्लेन इट मे बी इन टुमारो सेशन कि बैकएंड क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है. बट अंडरस्टैंड वन थिंग, ओवरऑल एक छोटा सा एप्लीकेशन भी जो आपको आपके इस पे दिखता है ना, आपके मोबाइल पे दिखता है, बीट स्विगी और जोमेटो और गूगल पे वगैरह, एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए मिनिमम बैकग्राउंड में 1000 सर्वर्स चल रहे होंगे. 1000 सर्वर्स मिनिमम, आई एम टेलिंग यू. तो इन सारे 1000 सर्वर्स का जो पूरा मेंटेनेंस वगैरह होता है ना, 1000 सर्वर्स चल रहे हैं तो इसमें से कभी किसी का रैम डाउन होता है, किसी का फैन उड़ जाता है, किसी का रैम कम हो रहा है, कोई ज्यादा ओवरहीटेड हो रहा है, किसी के ऑपरेटिंग सिस्टम में इशू आ रहा है, किसी का ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन हो गया है. तो ये सारे इश्यूज अब सर्विस डेस्क और एप्लीकेशन सपोर्ट से हट के इन इश्यूज पे हम लोग ज्यादा बात करने वाले हैं. वी विल बी डिस्कसिंग दिस and then how we can handle this in cloud. We will be discussing that, but not everything we'll be doing today. आज मैं इसको डिस्कस करता हूँ, वर्चुअलाइजेशन डिस्कस करता हूँ, and then we'll stop for today. ठीक है. So this is how it used to happen. So now imagine thousands of servers, thousands of hardwares I required. इतना सब ये सब पहले चलता था. Now a technology came called virtualization. Virtualization में क्या हुआ? Virtualization के there are few methods and there are few companies. अगर virtualization के मैं companies के बड़े companies के नाम लूँ, so we have one VMware. ये company का नाम है. ठीक है. कंपनी का नाम है, टेक्नोलॉजी है virtualization, कंपनी का नाम है VMware. हाइपरवाइजर जो है माइक्रोसॉफ्ट का भी एक हाइपरवाइजर है. ठीक है, जिसका नाम है Hyper-V. दीज आर द प्रोडक्ट्स नेम मैं बता रहा हूँ. माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है कॉल्ड Hyper-V. VM का एक प्रोडक्ट, VMware कंपनी का नाम है, इनका एक प्रोडक्ट है कॉल्ड vSphere. ये सारी चीजें किसमें हेल्प करती है हमको? वर्चुअलाइजेशन में. Oracle का एक है वर्चुअल बॉक्स. ये सारी चीजें हमको हेल्प करती है वर्चुअलाइजेशन में. नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू कि वर्चुअलाइजेशन होता क्या है. मे बी यू कैन सी इट हियर, थोड़ा सा आइडिया आपको आ जाए. मेरे एक ही इसके ऊपर, एक ही लैपटॉप के ऊपर मेरे पास है 8 GB रैम एंड मेरे पास है 1 TB हार्ड डिस्क. नाउ दिस इज द ओनली हार्डवेयर आई हैव, बट बेस्ड ऑन सेम हार्डवेयर what I want to do is I want to host multiple virtual machines. That's what I want to do. As of now I am showing it to you on my computer. मेरे खुद के लैपटॉप पे बता रहा हूं मैं, और फिर हम उसको सर्वर वाले इसमें जाकर देखेंगे. Now this is my own laptop. एक ही लैपटॉप है मेरे पास और मेरे इसमें Windows 11 इंस्टॉल्ड है. बट नाउ आई वांट टू प्रैक्टिस के, मुझको सर्वर की भी प्रैक्टिस करनी है, मुझको लिनक्स की भी प्रैक्टिस करनी है, उबंटू की. ठीक है, मुझको दो चार और प्रैक्टिस करनी है. तो एवरी टाइम आई डू नॉट वांट टू
अनइंस्टॉल माय ऑपरेटिंग सिस्टम, एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूं और ये करूं, नहीं, आई डू नॉट वांट टू डू दैट. सो व्हाट ऑप्शन डू आई हैव? वर्चुअलाइजेशन. वर्चुअलाइजेशन क्या करता है? वर्चुअलाइजेशन हेल्प्स मी टू होस्ट मल्टीपल मशीन्स ऑन अ सिंगल हार्डवेयर. इससे बहुत ज्यादा पैसा बचाता है. नासा ने शुरुआत की थी इसको अपने इसमें यूज करने के लिए, अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में यूज करने के लिए, स्पेशली विद VMware. काफी ज्यादा पैसा इससे सेव होता है. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू हाउ. पहले बस एक बार इसको देख लो कि ये कैसे चल रहा है. सो दिस इज माई लैपटॉप. ऑन माई लैपटॉप आई हैव माई Windows 11. ये मेरा Windows 11 यहाँ पर चल रहा है. इसके अंदर एक मैंने बस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है, VMware वर्कस्टेशन, और उसमें मैं इतने सारे वर्चुअल मशीन चला सकता हूँ. तो मतलब एक इसमें अब मेरा कितना पैसा बच गया कि आई डोंट हैव टू स्पेंड ऑन माई हार्डवेयर. इसने मेरे ही हार्डवेयर को वर्चुअली डिवाइड कर दिया. यहाँ पर हार्ड डिस्क ये सब मुझको दे दिया. आई गो बैक टू पेंट एंड आई एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स. फर्स्ट जस्ट wanted to show this to you guys के how it works. See, I could have 2 or 3 virtual machines. It for some reason that got failed, but I could use these many virtual machines. इतने सारे virtual machines में यूज कर सकता हूँ. सी आई एम यूजिंग Ubuntu also. यहाँ पर मैं Linux को भी यूज कर सकता हूँ. यहाँ पर आकर एक ही इसमें आई कुड यूज दीज मेनी वर्चुअल मशीन्स. ठीक है, तो ये सब जो है वर्चुअलाइजेशन की वजह से हुआ. सो नाउ हाउ इट हेल्प्स अस, लेट्स गो बैक हियर. यहाँ तक जो मैं एक एक वर्चुअल मशीन पे एक एक हार्डवेयर पे सिर्फ एक मशीन इंस्टॉल कर रहा था ना, नाउ आई हैव दैट लिबर्टी दैट आई कुड हैव 2 or 3 or 4 वर्चुअल मशीन्स. हार्डवेयर वही होगा. लेट मी एक्सटेंड दिस हियर. Is it clear? Should I erase this? इसको erase कर दूं? Or anyone wants snap वगैरह इसका कुछ चाहिए so I can send it, or do you want me to erase it? I'll erase it. वैसे इसमें कोई खास इतना ये है नहीं. Okay. Now we are talking about virtualization. I hope यहाँ तक clear है कि पहले कैसे होता था. Anyone has any question before I move towards virtualization? Servers वगैरह को लेकर किसी का भी कोई question है? Yes guys, yes, no, maybe. As of now, clear. Okay. So now let's take the same example. Here I have 3 servers. यहाँ पर again I'm talking about my hardware. I have server 1. Then I have server 2. And I have server 3. This I'm obviously talking about hardware. यहाँ पर इसमें है 64 GB RAM, random access memory, 1000 GB की हार्ड डिस्क. ठीक है, and 8 CPUs. ये मेरा इसका कॉन्फ़िगरेशन है. तीनों का ऐसा ही है. सो पहले क्या होता था, इफ आई इंस्टॉल वन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन दिस वन, तो पूरा 64 GB वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज करता था. समटाइम्स ऐसा होता था कि मेरे असेसमेंट में मेरे आंकलन में कुछ गलती हो गई, दैट आई वांटेड टू होस्ट एन एप्लीकेशन, और बाद में मुझको पता चला कि यार आई डिड नॉट रिक्वायर 3 सर्वर्स विद 64 GB, because on one server it is only using 16 GB, remaining मेरा वेस्ट हो रहा है. बट नाउ आई डू नॉट हैव एनी ऑप्शन. मैंने खरीद लिया उसको, वो मेरे लिए वेस्टेज है. ठीक है, बट पोस्ट वर्चुअलाइजेशन क्या हुआ यहाँ पर, जैसे ही वर्चुअलाइजेशन आ गया, इस हार्डवेयर के ऊपर आई विल इंस्टॉल वन थिन लेयर और वन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड Hyper-V या VMware का, दोनों में से किसी का भी. ठीक है, या फिर Oracle, इट कुड बी एनीथिंग दैट यू इंस्टॉल हियर. एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस तरह का इंस्टॉल करते हो. नाउ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम gives you features. Using that you could have multiple virtual machines here. You could have Windows Server 2016 here, 19, 16 again, 16, 19. Similar setup I could have here. No, so now जो पहले खर्चे में मुझको सिर्फ 3 सर्वर्स मिल रहे थे, अब उसी हार्डवेयर के खर्चे में कितने सर्वर्स मिल रहे हैं मुझको? I could get 15. और यहाँ पर ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है, 5 की जगह मैं 7 भी रख सकता हूँ. दैट डिपेंड्स कि आपको किस पे कितना रिसोर्सेज चाहिए. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू नाउ. ठीक है, लाइसेंस का खर्चा हो रहा है, बट हार्डवेयर का कॉस्ट मेरा कितना बच गया. सो नाउ लेट्स से दैट आई हैव एन एप्लीकेशन. मेरा कोई ऐसा एप्लीकेशन है, 2 एप्लीकेशन है मेरे पास.
एक जो है पूरा दिन में चलता है, दिन में मैक्सिमम यूजेस होता है, और एक है जो सिर्फ रात में चलता है, मे बी यूएस के यूजर्स यूज कर रहे हैं उसको। सो लेगेसी एप्लीकेशन में क्या होता था, लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर में वो आप दिन में यूज करो चाहे रात में यूज करो, क्या होता है मुझको दो अलग अलग हार्डवेयर परचेज करके ही रखने पड़ते हैं। बट यहाँ पर क्या होगा, I could use only two virtual machines. I could use two virtual machines on a single hardware. और इस वर्चुअल मशीन को मैं पूरा दिन में चलाऊंगा और रात में इसको शट डाउन करके इसी में चलाऊंगा। सो आई एम यूजिंग सेम हार्डवेयर। Guys, if this finishes, I'm not extending. I think that should be enough for today. So I am not purchasing any extra hardware. I'm utilizing the same hardware, and I'm using two operating system. दो एप्लीकेशन को मैं एक ही हार्डवेयर पे चला पा रहा हूँ। ये हुआ दिन और रात का एग्जांपल। लेट्स से ऐसा कोई एप्लीकेशन है जो दोनों भी दिन में ही चलते हैं। आई कुड यूज 5 मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हियर। बस यहाँ पर क्या होगा, ये 64 GB में से मुझको डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये 64 GB में से आई कुड गिव 10 GB टू दिस वर्चुअल मशीन, रैम आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, ठीक है। 10 GB यहाँ पर दे दिया, 10 GB यहाँ पर दे दिया सॉरी 10 GB यहाँ पर दे दिया, कितना हुआ 40। लेट्स से कि मेरा कोई क्रूशियल एप्लीकेशन है जो 10 GB में नहीं चलना है, जिसको 20 GB चाहिए, सो आई कुड डू दिस। मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना भी जरूरी नहीं है। सेम ये जो वर्चुअल सीपीयूस है, आई कैन गिव वन सीपीयू हियर, वन सीपीयू हियर, वन सीपीयू हियर, एक यहाँ पर दे दिया, ठीक है। बट अगेन दिस इज क्रूशियल। तो कितने बचे मेरे पास, 1 2 3 4, 4 सीपीयू बचा। आई कुड गिव 3, एक फिर भी स्पेयर में रखा है मैंने किसी फ्यूचर यूज के लिए। 1000 GB का है, 100 GB यहाँ दे दी, 100 GB यहाँ पर दे दी, 100 GB यहाँ पर, 100 यहाँ पर, एंड अगेन दिस इज क्रूशियल, तो 400 GB मैंने यहाँ पर दे दिया। So this is how a virtualization can help you, और ये सब के सब at a time चल सकते हैं। Now what is the benefit? इस मशीन को मैं कभी भी डाउन कर सकता हूँ, इसके रैम को बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, जो भी मेरे एप्लीकेशन में चेंजेस हो गए। लेट्स से स्विगी वाला ही एप्लीकेशन है या कोई और एप्लीकेशन है, उसको लग रहा है कि अब मुझको मशीन में थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, दे कैन सिंपली मेक चेंजेस इन दीज वर्चुअल मशीन। सो दिस इज हाउ वर्चुअलाइजेशन हेल्प्स यू। इज इट क्लियर? वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. One question and one hardware. How many virtual machines you can use? Sorry, what was that? What was the question? एक हार्डवेयर में कितने वर्चुअल मशीन यूज कर सकते हैं? There is no limitation. Let's see, I have 1000 GB Okay. का hard disk, I have 1000 GB का hard disk, so I could use जब तक मैं इनको proper divide कर पा रहा हूँ, not even equally, I'm not even saying you have to divide it equally. 8 CPUs है, जब तक मैं इसको divide कर पा रहा हूँ, let's say 8 CPUs में से I use my 4 CPUs here, इस वाले का example लेते हैं, ठीक है। I use my 4 CPUs here and 4 CPUs here on this virtual machine, ठीक है। And out of 64 GB, I used only 10 GB here and 10 GB here. And out of 1000 GB of my hard disk, I used only 100 GB here and I used 100 GB here. So I have 800 GB of hard disk remaining, and I have almost 44 GB of RAM remaining. But do I have CPUs? I already used my 8 CPUs. I will not be able to create my third virtual machine. So till the time you are able to divide these resources, अच्छे से रिसोर्स यूज डिवाइड कर सकते हो जहां पर यूज हो। ऐसे भी नहीं हो कि आप 1 1 GB देके 100 मशीन बना लो। यू कुड डू दैट, टेक्निकली दैट इज पॉसिबल। यहाँ पर लिटरली मैंने वही कर रखा है, जो मेरे लैपटॉप का सेटअप है ना, दिस सेटअप, द वन व्हिच वी आर लुकिंग एट, यहाँ पर वही कर रखा है मैंने। बट इसका ड्रॉबैक क्या होता है, इतना कम रिसोर्स दे रखा है ना मैंने, इतने लेस रिसोर्सेज दे रखे हैं। सी दिस इज माय वर्चुअल, अगेन दिस इज माय ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर 2022 है ये। बट इसमें मेरे टोटल लैपटॉप का रैम है 8 GB, मैंने मुश्किल से इनको 1 1 GB दे रखा है। सो मैं इवन इफ आई वांट, आई एम नॉट एबल टू एक्सेस ऑल ऑफ देम टुगेदर। कितना GB चलाएगा, 1 2 3 4 5 6 GB यहाँ चला जाएगा, और मेरे फिजिकल मशीन को भी तो कुछ चाहिए यूज करने के लिए, तो पूरा सिस्टम स्लो हो जाएगा। आई वोंट बी एबल टू यूज। अगर इस पे कोई मेरे यूजर्स होते, लेट्स से वो वेबसाइट जो मैंने आप लोगों को शेयर की, ये वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट अगर उस पे होस्टेड होती, ये वेबसाइट अगर उस पे होस्टेड होती, और आप में से 10 यूजर्स भी कनेक्ट करने लग जाते, तो मेरा मशीन जो है वो परफॉर्मेंस लूज कर देता। बट टेक्निकली इट इज पॉसिबल, बट नो वन डज दैट। You just have to understand this concept. Till the time you are able to divide these resources equally, you could have a number of machines.
Is it clear? Yes. Okay, कोई और डाउट है किसी को? No. Now we have 5 minutes left. Mm. Let me discuss quickly issues क्या आते थे, and from tomorrow इसी को जो next level है. Sorry, someone had any question? नहीं सर भाई कंटिन्यू. Okay. So I was saying कि इसके कुछ issues को हम discuss करते हैं, and कल से इसको हम थोड़ा बहुत cloud की तरफ मूव करेंगे. So now what could be the issues? जो पहले legacy मैंने बताया उसमें क्या होता था, एक सर्वर का कोई एक फैन भी अगर ये हो जाता है, एक सर्वर डाउन होता है, तो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा डाउन हो गया, एंड देन आई हैव डिपेंडेंसी ऑन द अदर वन. अब इसमें ऐसा होगा कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का ओएस लेवल का कोई इशू आता है ना, ओएस लेवल का इशू करेक्ट हो जाता है ओएस, तो सिर्फ ये पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा डाउन हो गया. आई एम स्टिल अप विथ माय सर्विसेज, इनसे सर्विसेज मेरी मिल रही है. ठीक है, पहले वाले में क्या था, एक ओएस भी डाउन होता है, एक छोटा सा कंपोनेंट भी डाउन होता है, तो मेरी सारी की सारी सर्विसेज बंद हो जाती थी, क्योंकि वो पूरा ओएस हार्डवेयर सब एक साथ ही चला गया. यहाँ पर हार्डवेयर के ऊपर मेरे पास 5 ओएस है. सो इफ समथिंग गोज रॉन्ग विथ वन ओएस, सम डीएलएल इशू, सम ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ इशू, लाइसेंसिंग का कुछ इशू है, ओएस क्रैश हो गया, एनीथिंग और any kind of issue, but that will impact only my operating system. That is not impacting my hardware, and I have another operating system to cater my services. Is it clear here till here? ये एक बेनिफिट हुआ फिजिकल और वर्चुअल में आने के बाद. बट स्टिल वर्चुअल में मेरे पास एक और क्या ड्रॉबैक है, इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद दिस हार्डवेयर, ये तो वर्चुअल मशीन्स है, ये तो वर्चुअल मशीन्स है, राइट? दीज आर वर्चुअल मशीन्स. अल्टीमेटली ये किस पे होस्टेड है? Now we will be using these words many times, guys. Host machine, guest machine, hosted. So this is my host, this is my physical host, and these are my guest operating system. So where are these hosted? These are ultimately hosted on this server 1, right? तो ये सर्वर 1 में भी क्या क्या होगा, कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे जो हमने देखे इसके, ये सारे कंपोनेंट्स होंगे इस सर्वर 1 पे भी होंगे कंपोनेंट्स. फैन होगा, सीपीयू होगा, सब कुछ होगा. दो हमने उसको वर्चुअली डिवाइड तो कर रखा है, बट वो कंपोनेंट्स तो ऑब्वियसली वहां पर होंगे सारे, मदरबोर्ड वगैरह वो सारे कंपोनेंट्स उसके ऊपर होंगे. सो इवन इफ वन फैन गोज डाउन, एक फैन चला जाता है, लेट्स से ये मेरा एक सर्वर है, इसके अंदर का एक फैन जो है, कूलिंग फैन जो है ना, सीपीयू फैन, वो फैन मेरा खराब हो गया, उसकी वजह से काफी इसमें हीट होगी, और पूरा का पूरा ये मेरा हार्डवेयर जो है वो डाउन हो गया, सर्वर मेरा पूरा डाउन हो गया, हार्डवेयर पूरा डाउन हो गया. सो व्हाट्स द यूज ऑफ हैविंग दीज 5 वर्चुअल मशीन्स? मेरा अगर ये सर्वर होस्ट ही डाउन हो गया है ना, तो ये पूरे के पूरे मशीन अपने आप ही डाउन हो जाएंगे. हाँ, एक ओएस का इश्यू होता तो ठीक है, मेरे पास दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, बट अगर ये डाउन हो जाता है ना, तो पूरे के पूरे वर्चुअल मशीन. इसलिए वर्चुअलाइजेशन होने के बाद भी वी होस्ट एन एप्लीकेशन ऑन मल्टीपल सर्वर्स, उसके ऊपर मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स. हाँ, इसका जो है अब क्लाउड में हमारे पास कैसा बेनिफिट है, क्या है, दैट वी विल सी व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग अज्योर, कि क्यों अज्योर या कोई भी क्लाउड इतना पॉपुलर और इतना डिमांडिंग क्यों है, ये सारे इश्यूज को कैसे वो ओमिट कर रहा है. वन मोर थिंग, ये जितने भी चीजें हमने डिस्कस की ना अब तक, नेटवर्किंग, हार्डवेयर एंड एवरीथिंग एंड एनीथिंग व्हाटएवर वी डिस्कस्ड, ये सारे का सारा इसका जिम्मेदारी किसकी है? कंपनी की है, जिसका ये डेटा सेंटर है, वेरेवर आई हैव होस्टेड. तो ये सब संभालने के लिए दे नीड रिसोर्सेज, दे विल रिक्वायर रिसोर्सेज. नेटवर्किंग वाला बंदा एक चाहिए होगा ताकि इन सबके बीच की कनेक्टिविटी देख सके. आई मीन यहाँ पर सिर्फ 3 सर्वर से, इसलिए आई टोल्ड यू कि एक एप्लीकेशन के लिए 1000 सर्वर है, तो अगर 1000 सर्वर से तो नेटवर्किंग का एक बंदा नहीं चाहिए होगा, नेटवर्किंग की पूरी टीम चाहिए होगी, राइट? इसके बाद अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ हो जाता है तो ओएस की एक टीम चाहिए होगी, जो विंडोज की टीम हो, अगर विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स की टीम हो तो लिनक्स की ऑपरेटिंग टीम चाहिए होगी, आईएसपी. तो ये सारा का सारा एक्सपेंसेस जो है एप्लीकेशन ओनर का होता है, जो एप्लीकेशन को होस्ट करवा रहा है, जो एप्लीकेशन का ओनर है. तो हाउ ये सबको कैसे थोड़ा बहुत हमने ओमिट किया है क्लाउड पे, दैट वी विल सी जब हम क्लाउड पे जाते हैं. ठीक है, सो फॉर टुडे आई एम स्टॉपिंग हियर. इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, ग्रुप में डाल सकते हो, ये कर सकते हो. सी यू गाइस टुमारो एट द सेम टाइम. आई विल लेट यू नो कि क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं. ठीक है, आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग इन सम टाइम.
Thank you, sir. Bye. Okay, चलो good. Thank you. Goodbye. Bye. Thank you, sir. Bye. Thank you.